Welcome students to the another session of the grammar classes, and in this today we'll discuss about the modal verbs, which are also called auxiliary verbs in English grammar. So here on your screen is a list of modal verbs: can, could, may, might, will, would, shall, should, must. And they can also be used in their negative forms also, like can't, could not, may not, might not, will not, would not, shall not, should not, must not. And also the expressions are also clarified by the modal verbs like dare, ought to, uh, had better, need not, right? And they also work as in modal auxiliary verbs. So here is the uses of the modal verbs. See, they can give you permission, they are used to. The main function of the modal verbs is to give permission, to show ability, to show obligation that you must do this, prohibition you should not do this, ये काम नहीं करना चाहिए, and lack of necessity, advice, advice should, possibility may, might, probability, might हो सकता है शायद. So these, the main point about the modal verbs is they are the helping verb in the English grammar, and that is why they are called auxiliary verbs. And what is the function of these modal verbs? They work together with the main verb. modal verbs जो हैं वो मेन वर्ब के साथ काम करती हैं और क्या एक्सप्रेस करती हैं, मैनर ऑफ एक्शन. ठीक है, ये मैनर ऑफ एक्शन करती हैं, जिसे अभी बताया ना, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कंपल्शन. तो ये जो हमारी वर्ब्स हैं ये इंग्लिश ग्रामर में हमें बेसिकली हेल्प करती हैं एक सेंटेंस को क्लैरिफाई करने के लिए कि उस सेंटेंस में जो हमारा नाउन है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या करना चाहता है. ओके, लुक हियर ऑन दिस पिक्चर ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स. देखो, modal auxiliary verbs. This is a chart here which you can draw in your main grammar book also. Listen, once again we'll repeat: can, could, will, would, may, might, must, shall, should. And as I earlier told you, they can also be used in their negative form. Okay, पॉजिटिव में भी यूज़ हो सकते हैं और नेगेटिव में भी यूज़ हो सकते हैं. ठीक है, और फिर यहाँ देखिए माइट, मे, मस्ट. ठीक है, माइट जो है ना ये पॉसिबिलिटी शो करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अभी लास्ट 2 डेज से कितने ब्लैक क्लाउड्स थे, है ना, कितने ब्लैक क्लाउड्स थे. तो हम सोच रहे थे, पॉसिबिलिटी थी कि इट माइट रेन, है ना, वो आज भी है. तो यू कैन से कि शायद, पॉसिबिलिटी है शायद, है ना, कि इट माइट रेन टुमारो, है ना. तो जैसे फिर मे जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, मतलब सच में ज़्यादा बहुत काले काले बादल हो रहे हैं एकदम, एंड यू नो इट कैन एट एनी मोमेंट इट कैन आउटपोर. तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है बेटा, मे. और मे एक जगह और यूज़ होता है डियर स्टूडेंट्स, जब आप एक रिस्पेक्टफुल परमिशन भी लेते हैं ना अपने एल्डर्स से, तो उस टाइम पे भी आप मे को यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर एल्डर, देयर यू कैन नॉट यूज़ द मोडाल कैन, वहाँ पे आप यूज़ करोगे मे. लाइक आप अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, है ना, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर आस्किंग अ परमिशन टू एंटर द ऑफिस, school office. There you cannot use the modal can. No, that's wrong. You will use the modal may. May I come in? But the rule is that you are talking to your elder. Okay, if you are talking to your friend, then at that time you are free to use the modal can.
for taking permission. Can I take your pen? Can I borrow your water bottle? हाँ, like this. Must, ये obligation है, करना ही है, करना ही है. You must wear school uniform. You must wear neat school uniform every day. ठीक है? Like for example, come up here. Some modals can be used in different ways, like can. Can shows ability, है ना? Like I can complete my work neatly in an hour, है ना? जैसे अभी बताया, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आप एकदम बात कर रहे हैं, तो there you are free to use modal can, है ना? Like you can use my pencil, right? ओके, ये इनफॉर्मल होता है. कैन जो है ना वो इनफॉर्मल यूज़ में आता है, और मे जो है वो फॉर्मल में यूज़ आता है. ठीक है, जैसे आप एप्लीकेशंस भी लिखते हो, आप बहुत गलतियाँ करते हो इसमें. देखो, कई बार हम लोग स्लैंग यूज़ में कैन को यूज़ कर लेते हैं. नो, एप्लीकेशन राइटिंग इज़ फॉर्मल, so there you cannot avoid using can there. You have to use may. Okay, now coming for would, है ना? would. हाँ, देखिए, पास्ट टेंस है. ये किसका है? विल का पास्ट टेंस है. ये तो आप सभी जानते हैं. ठीक है, तो आप इसके लिए देखो एग्जाम्पल पढ़िए यहाँ पे. डैड सेड ही वुड बाय मी न्यू शूज़. पापा ने कहा कि वो मुझे लेके देंगे. ठीक है, आगे कभी देंगे. ठीक है, अच्छा, ओके. अभी जैसे वुड और कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे बेटा आपका पास्ट की जो हैबिट है ना, पास्ट की जो एक्शंस हैं जो आप बार बार करते थे, जैसे आपके दादाजी हैं, वो आपको सुनाते होंगे कहानियाँ कि जब मैं छोटा था, जब हम बच्चे थे तो हम ऐसे करते थे, हम इतनी दूर पैदल चले जाते थे. हाँ हाँ, तो फिर उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? वुड. माई ग्रैंडपा वुड वॉक 3 किलोमीटर्स ईजिली व्हेन ही वॉज यंग. ठीक है, जो हमारी पास्ट की हैबिट है उसके लिए भी, पास्ट की जो रिपीटेड एक्शंस होती हैं जो आप यूजुअली करते ही थे, ईजिली करते थे, है ना, तो उसके लिए भी कौन सा मोडाल यूज़ होगा? वुड. इसको ध्यान दीजिए आप. कभी भी एग्ज़ाम्स में आपके पास ये आता है, अगर पास्ट की एक्शन है और की जा रही है तो उसके लिए मोडाल्स के ऑप्शंस में से आप वुड चुनेंगे. ठीक है, और एक और बात ध्यान देने की है वुड की, जब इफ़ कंडीशनल है, अगर ऐसा होता तो. हाँ, कंडीशनल अगर इफ़ लगा हुआ है तो अगर मैं परी होती, इफ़ आई वर अ फेरी, है ना, आई वुड हैव ब्लेस्ड एवरीबडी. हाँ, ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे. इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय अ ड्रम सेट. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट list here. Okay, here you have the list of the modal verbs like may. may किस किस के लिए यूज़ होता है? परमिशन के लिए यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, और प्रोबेबिलिटी, शायद, जो हमने अभी बताया. लाइक फॉर एग्जांपल मे फॉर्मल में है. मे आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़. जब आप रिस्पेक्ट शो करते हो, हाँ, तब भी आपको मे ही यूज़ करना है. लाइक एंड पॉसिबिलिटी, आई टोल्ड यू दैट. माइट, सिमिलर, जब आप बहुत हम्बल होके परमिशन ले रहे हैं, वैसे ये कम यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली हम लोग मे यूज़ करते हैं, बट हियर माइट भी यूज़ होता है. माइट आई सजेस्ट एन आइडिया, है ना, जब मतलब आप मीटिंग में हैं तो आप मे की जगह आप परमिशन में, पोलाइट परमिशन में, बट दिस इज़ रेयरली यूज़ इन इंडिया. आई एम टॉकिंग अबाउट माइट. फिर है पॉसिबिलिटी. मैं शायद जा सकता हूँ लंबे टूर पे. आई माइट गो टू अ लॉन्ग ऑन अ लॉन्ग टूर, है ना. नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट वीक. नीड नॉट. नीड नॉट भी हमारा मोडाल वर्ब है. हाँ, जैसे आई नीड नॉट बाय टमाटोज, है ना.
देयर आर प्लेंटी ऑफ टमेटोज इन द फ्रिज, कि मुझे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ जब 50% ऑब्लिगेशन होती है, आई शुड या ऑट टू सी अ डॉक्टर, आई हैव अ टेरेबल हेडेक। ये किसके लिए बात हो रही है? शुड और ऑट टू, है ना। शैल, शुड, लेकिन ऑट टू मतलब ज़रूरत करनी है, आपको करना ही है। और ऑट टू एक होता है बेटा, ऑट टू कहाँ यूज़ होता है? जब आपकी मॉरल ड्यूटीज़ से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आता है, जैसे बड़ों का ध्यान रखना, तो उसमें आप शुड नहीं यूज़ करोगे, है ना। शुड राय देने के लिए यूज़ होता है, शुड जो है वो सजेशन देने के लिए यूज़ होता है। इसलिए वहाँ पे आप जब ऑब्लिगेशन है, करना चाहिए, जैसे बड़ों की इज़्ज़त हमें करनी चाहिए, हाँ, बड़ों का ध्यान हमें देना चाहिए, तो उसके लिए आप ऑट टू यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब आप एडवाइस दे रहे हो, जब आप किसी को राय दे रहे हो, एडवाइस दे यू कैन यूज़ शुड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यू शुड रिवाइज योर लेसन्स फॉर tomorrow's test. Okay, logical conclusion, he should, है ना, he should be very tired, he has been working all day. Okay, moving on to the next here, other modal verbs here, must, जब आपको वो काम करना ही है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, कोई भी दूसरा ऑप्शन है नहीं वहाँ पे, लाइक फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, वियरिंग अ मास्क, है ना। सो देखिए ना, तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, देयर इज़ नो अदर चॉइस, देयर यू हैव टू यूज़ modal verb must. You must wear a mask nowadays to protect yourself from corona infection, है ना। Like you must stop when the traffic light turns red. Okay, जैसे ये he must be very tired, he is being working all the day, must not जो नेगेटिव में है वो नहीं करनी चाहिए, you must not break the traffic rules, है ना। can, modal can, एबिलिटी शो करता है ना। I can eat राजमा राइस वेरी डिलाइटफुली, है ना, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मैं खा सकता हूँ। I can swim, I can run and win the race easily. परमिशन, जब आप इनफॉर्मल होके अपने फ्रेंड से परमिशन लेते हो, आप इजीली इस मोडाल को यूज़ कर सकते हैं, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। एंड पॉसिबिलिटी, है ना, लिखा है ना, देखो आपने देखा होगा कि सिगरेट के उसके ऊपर भी लिखा रहता है स्मोकिंग, है ना, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, इससे ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी। ओके, नाउ कुड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, पास्ट टेंस ऑफ एबिलिटी, पास्ट टेंस ऑफ कैन, फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है इसको। सो दिस इज़ द list of the modal verbs. So dear students, you should copy all these and you should do all these works and list of modal verbs in your grammar notebook. Keep learning, be safe, revise hard and keep growing. Goodbye and be safe.